So today we are going to start the topic of electrolytic dissociation. Okay. Previously we studied के कैसे आयनाइजेशन फॉर्म होता है, ठीक है, कैसे अलग अलग पॉजिटिव नेगेटिव आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर conduction of electricity. Now we'll study about electrolytic dissociation. Now what is the meaning of dissociation? Dissociation का मतलब क्या होता है? NaCl atoms breaking, separating themselves to form ions Na plus and Cl minus. This is called as dissociation. Okay, normal dissociation. And electrolytic dissociation means the process due to which an ionic compound dissociates into ions in fused state or in aqueous state is called as electrolytic dissociation. Okay, तो अगर मैंने उसको पिघला दिया, fused state मतलब I have converted it into liquid form, or I have mixed it in water. Mixed it in water मतलब क्या होता है? Aqueous. Okay, so because of this process, the molecule NaCl will get broken down into Na plus and Cl minus. So this is called as electrolytic dissociation. Now we'll study about the electrolytic dissociation of sodium chloride. ओके तो यहाँ पे देखो एटम दिया है सोडियम और क्लोरीन. सोडियम के पास है पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के पास है नेगेटिव चार्ज, तो उसकी वजह से देयर इज दिस बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन. ओके, they are not free but are held together by electrostatic force of attraction between them. Okay, so therefore what will happen is when sodium chloride is dissolved in water, which is an aqueous solution, or melted in fused state, it conducts electricity. वो कैसे conduct करेगा वो? In aqueous state, the slightly negative charged oxygen atom of the polar water molecule exerts a pull on the positively charged sodium ion. तो water molecule में क्या होता है? H2O. H2O के पास ये जो है ना ऑक्सीजन, this is slightly charged oxygen. This charged oxygen is present in water. Already it is present in water. Now what will happen is that this oxygen, which is having negative charge, will attract the positively charged sodium ion from over here. Okay, sodium ion from NaCl. तो NaCl में एक अट्रैक्शन आएगा Na में बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन. तो Na क्या होगा? वो Cl को छोड़ देगा. ओके, Cl को छोड़ने के बाद Na प्लस आयन अलग हो जाएगा. Similarly, a pull is also exerted by slightly positively charged hydrogen atoms of the water. अगर ऑक्सीजन है नेगेटिव तो हाइड्रोजन है पॉजिटिव इन वाटर. तो हाइड्रोजन जो पॉजिटिव है वो क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा NaCl. ओके, तो क्या हो जाएगा कि वाटर जो है वो NaCl को दोनों तरफ से पुश कर रहा है. Na को अलग निकालने की कोशिश कर रहा है, Cl को भी अलग निकालने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज ऑफ विच NaCl विल गेट ब्रोकन डाउन. ओके, नेक्स्ट विल स्टडी द मोल्टन स्टेट. इन द हाई टेम्परेचर, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा हीट कर लेंगे, नो सॉल्ट डजंट जनरली गेट कन्वर्टेड इनटू मोल्टन स्टेट. तुम्हें लिक्विड सॉल्ट दिखाई नहीं देगा कहीं पे. ये बस सिर्फ क्या होता है कि अगर हम लोग सॉल्ट को हीट अप कर लेंगे, देन द बॉन्ड बिटवीन देम विल गेट ब्रोकन डाउन. ओके, जो बॉन्ड बीच का जो है ना, यहाँ पे एक क्रैक डेवलप हो जाएगा, एंड दिस बॉन्ड इज नाउ नो लॉन्गर दैट मच अमाउंट स्ट्रॉन्ग, सो देयरफॉर Na विल गो सेपरेट एंड Cl विल गो separate. Okay, hence it will lead to the formation of Na plus and Cl minus ions, and this Na plus and Cl minus ions will then lead to conduction of electricity. Okay, so in NaCl in aqueous state and in molten state, both of them it will conduct electricity. Okay, फिर क्या आता है? आयोनाइजेशन. आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिसोसिएशन का मतलब होता है, डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन में फर्क है कि डिसोसिएशन में देखो यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस आयन पहले से प्रेजेंट थे. डिसोसिएशन में सिर्फ हमने उसको अलग अलग कर दिया, दैट्स इट. लेकिन आयोनाइजेशन में एज ए नेम सजेस्ट, हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव आयन बनाएंगे मॉलिक्यूल के अंदर. मॉलिक्यूल के अंदर पहले पॉजिटिव और नेगेटिव आयन नहीं था. इट वाज नॉट हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, but instead it was having covalent bond. वहाँ पे electrons are shared equally between the two atoms. Okay, there is no charge present over here. So if you take a perfectly neutral molecule and if you are generating charge inside them, then the process is called as what? Ionization. Okay, the process by which polar covalent compounds are converted into ions in water solution is called as ionization. For example, I can say that hydrogen chloride जो होता है वो HCl के बीच में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म होता है. ठीक है, लेकिन वो कंप्लीटली कोवलेंट नहीं होता. हमने लास्ट टाइम देखे थे कि कैसे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना, वो अपने तरफ थोड़ा इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा. तो यहाँ पे क्लोरीन विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन लिटिल बिट टुवर्ड्स इटसेल्फ, इट विल बिकम क्लोरीन नेगेटिव डेल्टा. Okay, and hydrogen positive delta. So we are having a very small charge. Okay, small charge of negative and positive on hydrogen and chlorine. तो जब हम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग जब वाटर में डालते हैं, तो अगेन वाटर का जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव है, वो H को अट्रैक्ट करेगा, और वाटर का जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव है, वो क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा. तो वाटर का H and O विल अट्रैक्ट HCl का H and O. ओके,
because of which this H and Cl will go separate ways and hence it will lead to the formation of ions H plus ions and Cl minus ions. तो यहाँ पे आयन फॉर्म हो जाएगा, जो HCl जो नॉर्मल जो ये था ना, क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड में था, जिसमें नेग्लिजिबल चार्ज था, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज था. ओके, यहाँ पे इट विल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, this is water molecule H2O, where oxygen is having negative charge and hydrogen is having positive charge. So in this case what will happen is that okay, this O with negative delta will still attract this H with positive delta. ओके, तो O के पास ऑलरेडी दो हाइड्रोजन था, एक और हाइड्रोजन वो ले लेगा एंड इट विल फॉर्म H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन. ओके, हाइड्रोनियम आयन इज पॉजिटिव इन नेचर, देयर इज अ प्लस चार्ज, प्लस डेल्टा नहीं, यहाँ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज नहीं, पूरा वन पॉजिटिव चार्ज. ओके, एंड व्हाट इज लेफ्ट इज क्लोरीन. तो क्लोरीन जो माइनस डेल्टा है वो पूरा एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा हाइड्रोजन से और वो क्लोरीन माइनस बन जाएगा. सो इन लेफ्ट हैंड साइड वी वर इन बोथ द केसेस हैविंग डेल्टा डेल्टा स्मॉल स्मॉल चार्जेस, बट राइट नाउ वी आर हैविंग फुल पॉजिटिव एंड फुल नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पे हम लोगों ने देखे थे कि कैसे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड में ये नहीं था, क्या बोलते हैं, आयन नहीं था, बट हमने उसको आयन में कन्वर्ट कर दिया. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन. ओके, यहाँ पे डिस्टिंग्विश दिया हुआ है, formation of positively or negatively charged ions from molecules which are not initially in the ionic state. So ionization में initially it is not in the ionic state, initially ions are not present. Okay, but in dissociation में ions are already present, Na plus and Cl minus is already present. Ionization में क्या होगा, polar covalent compound show ionization. तो कोवैलेंट कंपाउंड रहेगा तो आयनाइजेशन दिखाएगा, और अगर इलेक्ट्रोवैलेंट या तो फिर आयोनिक कंपाउंड रहेगा तो वो डिसोसिएशन दिखाएगा. एग्जांपल इज HCl जो हमने प्रीवियसली देखे, और KCl भी यूज कर सकते हो, NaCl भी यूज कर सकते हो, एनी एग्जांपल यू कैन यूज इन डिसोसिएशन. ओके फाइन, ठीक है, लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. Electrochemical series, very interesting topic. It is also there in chemistry in 11th and 12th also. Okay, so it's the basis of चार्ज्ड वाला. हम लोग कभी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इट्स अ डिफरेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी बिहेवियर, इलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ डिफरेंट केमिकल्स. सो इन दैट electrochemical series plays a very important role. ठीक है, now suppose for example I'm comparing three metal atoms. Okay, potassium, calcium and aluminium. Okay, तीनों के तीनों मेटल है, तीनों के तीनों के पास इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी है, और तीनों के तीनों कैटायन बनाएंगे. ओके, K बनाएगा K plus and E minus 1. Calcium का valency is 2, so K Ca 2 plus and 2 minus, and Al 3 plus and 3 minus. Okay, so all three of them will be having a tendency to lose electron and it will become positive. Okay, but some of them will lose electron very easily and some of them will lose electron not so easily, like potassium. पोटेशियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो आराम से दे देगा, खत्म. तो पोटेशियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव. फिर आता है कैल्शियम, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए थोड़ा बहुत अपने को एनर्जी स्पेंड करना पड़ेगा. फिर एल्यूमिनियम. तो अगर मैं चार्ज की कैपेसिटी से रिएक्टिविटी की कैपेसिटी से अगर मैं अरेंज करूंगा, सबसे पहले आएगा के, फिर Ca, फिर Al. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. वी आर अरेंजिंग द डिफरेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटम्स. यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव देख रहे हैं, नेगेटिव में भी हम लोग Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस देखेंगे. ठीक है, यहाँ पे हम लोग जब पॉजिटिव देख रहे हैं तो in this positive I can see that how easily a particular, जितना easily वो आराम से इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव बन जाएगा, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आएगा. और अगर उसको इलेक्ट्रॉन को देने में थोड़ा बहुत अगर एनर्जी लग रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन सीरीज में नीचे आएगा. सो व्हेन आई अरेंज ऑल द मेटल, all the electropositive in the order of the ease in which they are giving away their electron, they are called as electrochemical series. सबसे ऊपर वाला, ये सीरीज में सबसे ऊपर वाला जो एटम रहेगा ना, वो आराम से अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, जैसे कि सोडियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम. और ये सीरीज में जो नीचे रहेगा ना, वो आराम से इतना इलेक्ट्रॉन अपना नहीं देगा, दे देगा वो, बट वी हैव टू स्पेंड अ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ एनर्जी. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल. उसके आगे भी हम देखेंगे. ठीक, इलेक्ट्रो सीरीज ऑफ इंडिया, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ मेटल्स. तो यहाँ पे वी कैन सी दैट मेटल्स पोटेशियम में सबसे ऊपर आता है, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम. ठीक है, सो यहाँ पे वी आर सीइंग द इंक्रीजिंग cations are discharged by the gain of electrons. Okay, increasing ease of discharge of cathode. Okay, based on the ease in which atoms of metals lose electrons to form positively charged ions, the metals are arranged in a series known as the electrochemical series. Okay, so this is the entire arrangement. Okay, पोटेशियम सबसे ऊपर और प्लैटिनम सबसे नीचे.
Now about electrochemical series of metals, all a metal with a higher position in the series displaces the one with a lower position. Okay, तो हम लोग देखेंगे कि हायर वाला लोअर को डिस्प्लेस कर देगा, लाइक पोटेशियम डिस्प्लेस कर देगा सोडियम को, सोडियम डिस्प्लेस कर देगा निकल को, निकल डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, कॉपर डिस्प्लेस कर देगा प्लैटिनम को। ठीक है, तो जो ऊपर है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम हैविंग अ सॉल्यूशन जहाँ पे KCl है, सॉरी FeCl3 है, FeCl3, हाँ Fe इधर है, FeCl3। अब अगर मैं एल्यूमिनियम डाल दूंगा ना, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, Fe को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब FeCl3 नहीं रहेगा, Fe की जगह पे Al आ जाएगा, तो AlCl2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसी Fe में अगर मैंने ये डाला, क्या बोलते हैं, लेड डाला, तो लेड तो नीचे आ गया ना, नीचे वाला ऊपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ऊपर वाला नीचे को डिस्प्लेस करता है। So I can say that if I'm having FeCl2, then potassium, calcium, sodium, magnesium, aluminum, and zinc, they have the capacity to displace iron. But nickel, tin, lead, hydrogen, copper, they don't have the capacity of displacing iron. तो जो ऊपर रहता है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, समझ में आया फर्स्ट पॉइंट? A metal with a higher position in the series displaces the one with a lower position. Metals below hydrogen cannot displace hydrogen from acid, while those above can it. Okay, तो ऊपर वाला नीचे को डिस्प्लेस कर सकता है, वही अपने को यहाँ पे दिया हुआ है। एलिमेंट्स लोअर इन द सीरीज गेट डिस्चार्ज्ड मोर इजीली एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, सो देयरफॉर whatever is lower, platinum is lower, it will be discharged very easily at the cathode. हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रहेगा, सेल में कैथोड में फटाक से जमा हो जाएगा वो। ठीक है, वो जाके स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा हमारा कैथोड में। जैसे प्लैटिनम, प्लैटिनम वेरी इजीली, सबसे नीचे प्लैटिनम है ना, इंक्रीजिंग ईज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द कैथोड, देखो यहाँ पे साइड में दिया हुआ है, सबसे नीचे जो होता है वो इजीली कैथोड में डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब कैथोड में डिस्चार्ज मतलब कैथोड में जाके जमा हो जाना। ओके, और जो ऊपर रहेगा वो इतना इजीली कैथोड में डिस्चार्ज नहीं होगा। Okay, so then we are having metal atoms which form their ions most easily will accept the electron back to form atoms with greatest difficulty. Hydrogen has some properties of a metal, like it will hydrogen के पास क्या metallic property है, hydrogen will lose electron and it will become positive ion. So hence this property of hydrogen is similar to that of the property of metal. Therefore it has also been placed along the metal. तो इसलिए हम लोग ने ये पूरे सीरीज में जहाँ पे सब जगह पे मेटल है, यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन गैस भी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी भी सिमिलर है, ये भी आराम से H+ आयन बना देगा। ठीक है, तो ये हमने देखे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, सो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ एनायन भी है। एनायन में हम लोग अगर देखेंगे तो SO4 ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है, फिर NO3, फिर Cl, फिर Br, फिर I, फिर OH। ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्चार्ज कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और जो नीचे है वो इजीली ये हो जाएगा। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ द एनोड। Okay, so OH will be easily formed at the anode, it will become stable very easily, but SO4 will not be stable that easily, it is having a higher amount of charge. Okay, so when we arrange a particular group of ions into their order of reactivity, then that arrangement produces this kind of an electrochemical series. Okay, fine. तो electrochemical series आता है, पता है किस काम में? अगर मुझे एक बैटरी बनाने का है, एक सेल बनाने का है, तो मैं उस सेल के कैपेसिटी के हिसाब से मैं उसको बनाता हूँ। ठीक है, आई वांट द सेल टू हैव कैपेसिटी दिस एंड दैट। ओके, इसका पावर ये होना चाहिए, उसका चार्ज ये होना चाहिए, तो वो हम लोग बनाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल। अगर मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल अगर ये चाहिए, क्या बोलते हैं, सेल चाहिए, तो मैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव का भी सबसे पावरफुल वाला लूँगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव का भी सबसे पावरफुल वाला लूँगा, और दोनों को मैं ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे पावरफुल बैटरी मिलेगा। बट इफ आई वांट लाइक 1 वोल्ट 1.5 वोल्ट, दैट इज सफिशिएंट फॉर मी। तो इवन यहाँ पे लेड, यहाँ पे आयोडीन, दैट वो नीचे वाला भी अगर ले लूँगा चलेगा। Okay, so depending upon the capacity of the battery that I'm intending to make, the electrochemical series comes very handy over there. Okay, fine. Let us see what is the next topic. ये तो क्वेश्चन आंसर्स है, वो एक बार पढ़ के देखो आता है क्या। Preferential selective discharge of ions at electrodes. Okay, ये तो A, B, C, अच्छा उसके आगे सिर्फ हमारे पास सेल्स दिए हुए और सेल का स्टडी करने का है। ठीक है, फाइन। तो अब्दुल्ला, वैसे भी 5 बजने को ये हो रहा है, आई एम एंडिंग ओवर हियर। ओके, आई एम अपलोडिंग दिस lecture on YouTube. Okay, if you come back early like 7:30, then give me a message on WhatsApp. I'll keep a lecture again in the evening. Okay, Okay. fine. तो अभी यहाँ पे एंड कर रहा हूँ मैं, and I'm uploading this in YouTube in like 10-15 minutes. Goodbye.